हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर सेफ एंड तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे लिटिल गर्ल बाय कैथलीना मैनिसफील्ड। इस वीडियो को भी मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन टाइटल of the story The Little Girl by Kathleen Mansfield. Let us see the theme of the story. The theme of a story is a relationship between children and their parents, and the writer Kathleen Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. तो इस थीम जो है स्टोरी का बताता है चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच रिलेशनशिप। और ये जो राइटर है इसकी कैथरीन मैनसफील्ड हम चिल्ड्रन को बताना हम बच्चों को बताना चाहती हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव पेरेंट्स के साथ चिल्ड्रन और पेरेंट्स शेयर करते हैं आपस में। और जो पेरेंट्स है वो चिल्ड्रन के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं और वो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। वो स्ट्रिक्ट नहीं कि ऐसा वाला स्ट्रिक्ट नहीं कि एकदम गुस्सा में, वो जो स्ट्रिक्ट होता है वो हमारे भले के लिए होता है। तो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन। द टाइटल ऑफ द स्टोरी रेफर्स टू द मेन कैरेक्टर दैट वी विल कम अक्रॉस, द लिटिल गर्ल नेम केजिया. The theme of the story is the relationship between children and their parents, and the writer Catherine Mansfield wants to tell us that the children share a very important bond of love with their parents. Although when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict, and many actions of the parents seems unjustified. But as children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. तो जब ऐसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स कुछ उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन, चाहे उनके लिए कुछ भले के लिए उनको डांटते हैं या गुस्सा होते हैं, तो चिल्ड्रन को लगता है उनको, जब चिल्ड्रन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो उन्होंने डांटा है वो उनके भले के लिए ही डांटा है। The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. तो ये बॉन्ड ऑफ लव जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच होता है इस स्टोरी के थ्रू हमें बताया जा रहा है। When we are small, we are very small. When we are very small, we do not know why our parents are being strict with us. But as we grow older, we become mature and we realize that why they were being strict with us. And when we realize that thing, then we also realize that our parents love us. So even the reader can also relate to this. You all can also feel that when you were younger, the action your parents did, the strictness that they had towards you was for your betterment. And as you will grow older and older, you will realize that in the past, whatever acts your parents did were for your betterment, and in fact they really love you. तो स्टोरी के थ्रू हमें यही बताया गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बहुत हम पे स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर पेरेंट्स क्यों स्ट्रिक्ट थे, और ये हमारे बेटरमेंट के लिए अपने हमारे पेरेंट्स करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन का कंटिन्यूएशन ही देखते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम।
इस लाइन का मतलब है कि all the children will feel the same way. You can all relate to the feeling of little girl Kezia. Just like Kezia is full of fear towards her father, and later on she understands his behavior and feels that he was concerned and he loved her. All the children also have the same feeling towards their parents, and you can relate to Kezia's story very well. तो ये इस स्टोरी में मेनली होता है कि एक लिटिल गर्ल होती है जिसका नाम केजी होता है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत स्केयर्ड रहती है, मतलब बहुत, वो अपने फादर से बहुत, मेनली अपने फादर से बहुत डरी हुई रहती है क्योंकि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं उसको। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट थे वो बाद में जाके केजिया को पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते हैं। और और फिर उसका सारा डर अपने फादर के प्रति निकल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टोरी का। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड टू एंड अवॉइडेड। यहाँ पे ही जो है वो इधर ही अपने फादर को बोला है केजिया ने। Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss. जब वो उसके फादर जो हैं वो जब काम पे जाते हैं अपने, तो फिर हमेशा वो उसके रूम में आते हैं और उसको किस देते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। जब वो किस देते हैं तो उसके वो जो केजिया है वो उनको बोलती है गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. तो जब उसके फादर आते हैं तो फिर वो केजिया से कहते हैं कि तुम कि तेज़ आवाज़ में हॉल में कि मेरा चाय लाओ ड्राइंग रूम में। हैज़ेंट द पेपर अभी तक आया नहीं क्या? तो फिर वो पेपर अभी तक आया नहीं, इसका आंसर वो मदर से बोलते हैं कि जाओ देख के आओ कि अभी तक पेपर आया कि नहीं, और मेरे चप्पल भी ले आना। तो अब सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अ फादर्स बूट्स। बूट्स का मतलब है फादर्स के शूज़। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन the stairs more slowly still across the hall and push open drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो केजिया की मम्मा उसे बुलाती हैं, अगर तुम गुड अच्छी गर्ल हो तो नीचे जाओ और अपने फादर के चप्पल को शूज़ को ले आओ। तो वो जो लिटिल गर्ल है यानी केजिया वो आराम से जाती है स्टेयर्स से और धीरे धीरे जाती है जब तक वो हॉल तक पहुंचती है और ड्राइंग रूम का डोर पुश करती है। जब तक वो उसके फादर जो स्पेक्टिकल्स ढूंढते हैं तब तक वो थोड़ी डरी रहती है। और उसके फिर फादर बोलते हैं कि जल्दी करो, मेरे बूट्स को जल्दी बाहर रख के आओ। हैव यू क्या तुम आज अच्छी गर्ल बन के रही? तो जो वो केजिया है वो बोलती है आई डोंट नो फादर। तो वो ऐसे इसलिए बोलती है क्योंकि वो थोड़ी डरी रहती है अपने फादर से। तो उसके फादर बोलते यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम अगर ऐसे बोलोगी तो जो तुम्हारी मॉम है उनको डॉक्टर के पास तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। अब थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। शी नेवर
stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then he was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carried my teacup but to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was thinking about a giant. तो उस केजिया को लगता था कि उसके पापा फादर जो है उसके जाइंट हैं, क्योंकि जब वो यौन करते थे तब उनका मुंह उसे लगता था कि वो एक जाइंट की तरह खुलता था। और देखते हैं, he had quite given it up, but only with father because trying so hard words properly. What's the matter? क्या हुआ? What are you looking so wretched about? तुम इतना परेशान किस बारे में हो? तो मदर को बोलते हैं कि ये ब्रिंक ऑफ सुसाइड में तो अपियर नहीं हुई। Here Kezia, here Kezia carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth. जो उसके फादर थे बहुत बड़े थे और उनका हाथ था, उनका नेक था, वो सब बहुत बड़ा था और उनका जो माउथ था तो वो और भी उसको बड़ा लगता था। और मैंने बताया कि उसको अपने फादर एक जाइंट लगते थे जब वो यॉन करते थे। अब 4th पैराग्राफ में देखते हैं। On Sunday afternoon, grandmother sent her to the drawing room to have a nice talk with father and mother. दोस्तों यहाँ पे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो जो संडे का आफ्टरनून का समय था, जो केजिया की ग्रैंडमदर थी, उन्होंने केजिया को ड्राइंग रूम में भेजा अपने फादर और मदर के साथ बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। तो जो लिटिल गर्ल थी वो अपने जब उसके ग्रैंड मदर ने उसको भेजा अपने फादर मदर के साथ बात करने के लिए, तो जो लिटिल गर्ल थी वो हमेशा अपने मदर को बुक पढ़ते हुए देखती थी और अपने फादर को हमेशा सोते हुए देखती थी। और उनके फेस पर हैंकरचीफ होता था और वो अपना एक पैर अपने प्यारे कुशन पर रख के आराम से साउंडली और स्नोरिंग सोते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो जो केसिया थी तब तक वो आराम से स्टूल पे बैठे रहती थी और जब तक वो खड़ी और जब तक वो खड़े हो मतलब सो के उठते नहीं थे और आराम से स्ट्रेच अपने आप को नहीं देते थे, तब तक वो वहीं पे बैठी रहती थी। और जब वो उसके फादर जो थे वो टाइम पूछते थे तब तो केजिया थोड़ी डर जाती थी। तो उसके फादर बोलते, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स with cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week. तो ग्रैंडमदर जो थे वो बताते थे कि उसके जो ग्रैंडमदर थी तो उन्होंने केसिया को बताया कि तुम्हारे फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक में है और तुम्हें उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो उनके ग्रैंडमदर जो उनको एक आइडिया है कि जो केजिया है वो उन्हें एक पिन कुशन दे गिफ्ट में, येलो सिल्क का बना हुआ। अब 5th पैराग्राफ में देखते हैं। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. तो जो लिटिल गर्ल थी तो उसको भी अच्छा आइडिया लगा, तो फिर उसने जो एक कुशन था तो उसका 3 साइड को स्टिच कर दिया। तो फिर जब उसको स्टिच कर दिया, 4th साइड बच गई स्टिच करने के लिए।
तो उसने सोचा कि इसके अंदर मेरे को कुछ भरना चाहिए, तो मैं क्या भरूं। तो उसके लिए क्वेश्चन हो गया। तो जो उसकी ग्रैंडमदर थी वो गार्डन में थी, और वो जो केजिया थी वो अपने मदर के बेडरूम में गई स्क्रैप्स ढूंढने के लिए। पर उसको जो बेड टेबल पे एक कई सारे शीट मिले पेपर के, और उसको इकट्ठा किया केजिया ने और उनको फाड़ के उसके अंदर भर दिया फोर्स टाइट स्टिच करने के लिए। और फिर सब कुछ उसके अंदर भर दिया, फिर फोर्स टाइट भी स्टिच कर दिया। तो वो उसके फादर के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर थे जिसको उसने तो फाड़ दिया। तो फिर फादर का वो पोर्ट अथॉरिटी का एक स्पीच था। तो फिर फादर ढूंढने लगे जब उनको ज़रूरत पड़ी। तो कई रूम्स भी ढूंढे, कई रूम्स में भी देखा गया। सर उनके जो सर्वेंट्स थे उनसे भी पूछा गया। तो फिर सबने ढूंढा, तब एंड में पता चला कि केजिया के रूम में उसकी मम्मा आई केजिया की, और उससे पूछा कि आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। मैं सोचती हूँ कि तुमको कोई पेपर नहीं मिले होंगे हम लोग के रूम में। तो केजिया बोलती है हाँ मुझे मिले थे, पर उनको मैंने फाड़ दिया फादर को सरप्राइज़ देने के लिए। तो मदर बोलती है व्हाट, चिल्ला के बोला व्हाट। मदर स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इसी समय ड्राइंग रूम में आओ तुम। अब 6th पैराग्राफ में देखते हैं। And she was dragged down to where father was pacing and to and fro, hands behind his back. Well, she said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. उसने विस्पर करके बोला, क्योंकि वैसे भी वो अपने फादर से बहुत डरती थी। तो उसने बोला नो नो, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. She see that the child's put to bed this instant. अब 7th पैराग्राफ में देखते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. मैं तुम्हें इसके लिए मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा क्योंकि वो मेरे इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे। तो केजिया बोलती है नो नो फादर। उसने चिल्ला के बोला बेड क्लोथ्स के अंदर छुप के। शी ही पुल्ड देम असाइड। उन्होंने उसके बेड क्लोथ्स को साइड कर दिया, और उन्होंने बोला बैठो यहाँ पे। उन्होंने ऑर्डर करके बोला, और अपने हाथ को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे से तुम किसी भी ऐसे सामान को टच ना करो जो तुमसे बिलोंग ना करते हो या तुम्हें उसकी ज़रूरत ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। ये केजिया बोलती है कि वो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। उसके जो पाम्स थे वो पिंक हो गए क्योंकि उन्होंने रूलर मारा उसके हाथ पे। अब 8th पैराग्राफ में देखते हैं। दोस्तों या 8th पैराग्राफ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, और इस हमेशा की तरह इस चैप्टर के भी असाइनमेंट्स हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। असाइनमेंट्स इस चैप्टर के अगर आपको चाहिए असाइनमेंट या कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। पार्ट 2 जल्दी आएगा। और दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं आप, अगर आपको रिसेंट अपडेट्स चाहिए तो थैंक यू फ्रेंड्स। पार्ट 2 आने वाला है। बाय।